جائزہ، شہر میں بجلی کے نظام کو بحال رکھنے کے لیے اقدامات کرنے اور بجلی کے گرے ہوئے تاروں کی بحالی کا کام تیز کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں موجود پانی کی نکاسی کا کام مزید تیز کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ شہر کو بھول گئے، کراچی کے مضافاتی علاقوں کا دورہ، بارشوں سے متاثر ہونے والی صورتحال کا معائنہ۔ کہتے ہیں مضافاتی علاقے بھی سندھ کا حصہ ہیں، لوگوں کو بھی مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ، شارع فیصل پر پانی جمع ہونے پر برہمی کا اظہار۔ کہتے ہیں پانی کی نکاسی کو فوری ممکن بنایا جائے۔ کراچی لاوارث ہو گیا، سندھ حکومت اور شہری حکومت کی سرد جنگ نے شہر کو ڈبو دیا۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات، میئر کراچی کے من پسند علاقوں کے دورے، نالوں کی صفائی نہ ہو سکی، پانی کی نکاسی کا کام سست روی کا شکار۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کا مختلف علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کے اقدامات کا جائزہ، بلدیاتی عملے کو بارش کے پانی کے نکاس کے لیے 24 گھنٹے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں شہری کو ریلیف پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور نے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کیے اور اپنی نگرانی میں نکاسیاب کے امور نمٹائے۔ انہوں نے یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل، شاہراہ قائدین سمیت مختلف علاقوں میں برسات کے ساتھ نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے بارش کے دوران بلدیہ ملیر کی مختلف شاہراہوں کا ہنگامی دورہ کیا اور ڈی واٹرنگ پمپ اور افرادی قوت کی مدد سے نکاسیاب کے کام کا جائزہ لیا۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد کا مختلف علاقوں کا دورہ، شاہراہوں اور گلیوں سے پانی کی نکاسی کے کام کا جائزہ۔ کہتے ہیں پیشگی اقدامات کے باعث لوگوں کو بارش سے مشکلات پیش نہیں آئے۔ چیئرمین ڈی ایم سی ساؤتھ ملک فیاض کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، نکاسیاب کے کاموں کی نگرانی کا جائزہ۔ کہتے ہیں بارش کے دوران بلدیاتی عملے نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ قائم مقام چیئرمین بلدیہ غربی عزیز اللہ آفریدی نے مختلف علاقوں کے ہنگامی دورے کیے۔ اس دوران انہوں نے ہدایت جاری کی کہ ندی نالوں اور چوکنگ پوائنٹس پر توجہ مرکوز رکھنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور شاہراہوں پر جمع ہونے والے برساتی پانی کی نکاسی کے لیے فوری اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اور وائس چیئرمین ڈی ایم سی کورنگی سید احمد علی کا مختلف علاقوں کا دورہ، بارش کے بعد نکاسیاب کے جاری کاموں کا معائنہ۔ کہتے ہیں بلدیاتی عملے کو ہدایت کی ہے کہ نکاسیاب کے مسائل پیدا نہ ہو۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بات کر لیں گے شہر قائد میں ہونے والی ہلکی اور تیز بارشوں کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں کہ ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ صبح سے ہی جاری تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو شاہراہوں کے حوالے سے جہاں پر بدتر صورتحال رہی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں مونسون کا سسٹم اس وقت شہر قائد میں داخل ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہر قائد پر بادل مہربان ہو چکے ہیں، ابر رحمت جم کر برس پڑے ہیں اور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ صبح سے ہی جاری رہا۔ موسم دل فریب ہوا، نظارے کھل اٹھے ہیں چہریوں کے چہروں پر اور خوشی کی لہر ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کراچی میں بدھ تک آپ کو بتائیں کہ بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ اپڈیٹ آپ کو کریں شہر قائد کے موسم کے حوالے سے، صبح سے ہی ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ طوفانی بارشوں کا سسٹم پاکستان میں
में दाखिल हो चुका है। साथ ही आपको बताएं कि हैदराबाद, बदीन, ठट्टा में बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिशों का सिलसिला मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कराची में रात गई ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाएगा और साथ ही आपको बताएं कि कराची में आज शाम से ही मूसलाधार बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज शहर कायद के मौसम के हवाले से सुबह से ही हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर कायद पर बादल मेहरबान हो चुके हैं, अब्रे रहमत जमकर बरस पड़े हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम दिलफरेब हो गया, नज़ारे खिल उठे हैं, शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर है। महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की कराची में बुध तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ ये बारिश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। एयरपोर्ट के अतराफ में 11 मिलीमीटर, जबकि मसरूर बेस पर 7, नाजमाबाद के हवाले से बात करें तो 5 से 7, फैसल बेस पर 9, लांडी और सरजानी टाउन में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। हैदराबाद के हवाले से अगर बात करें तो वहां पर भी बादल जमकर बरसे हैं। लाड़काना में मूसलाधार बारिश से जलतलेक हो गया। मुसलसल बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही और नशीबी इलाके ज़ेरे आब भी आ चुके हैं। बारिश से कराची, हैदराबाद के हवाले से बात करें तो मौसम काफी दिलफरेब इस वक्त हो चुका है और शहरियों ने तफरीही मकामात का भी रुख कर लिया है, मुख्तलिफ मकामात का रुख किया है और वहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद साहिल समंदर पर भी मौजूद रही और मुख्तलिफ पार्क्स में भी मौजूद रही है। शहर कायद के मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मॉनसून सिस्टम ने जहां रंग जमा दिया है, शहर कायद के बासी भी खुशी से निहाल हो चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से ही कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा था, जहां पर आपको बताएं कि शहरियों के चेहरों पर खुशी की लहर भी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बुध तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी गई है। बरसता सावन, गरजते बादल और सड़कों पर बहते पानी ने शहरियों के चेहरे खुशी से खिला दिए। एक जाने बरसती बारिश ने जहां शहरियों को खुशी से निहाल किया, वहीं इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस अब्रे रहमत को जहमत में तब्दील कर दिया। शाहराहों पर कई फुट जमा पानी ने सिंध सरकार समेत बल्दिया उज़्मा कराची की अदम कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए शहरियों का कहना था कि ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है। अल्लाह ताला का करम है कि काफी अरसे के बाद जो है ना अब्रे रहमत बरसी है, उसका उस रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये कि हुकूमत को भी ये चाहिए कि कुछ इंतजामात ऐसे करे जो आवाम की सहूलत के लिए हो। आवाम को सहूलत नहीं मिल रही, जगह जगह गटर खुले हुए हैं, लाइनें ब्रेक हुई हुई हैं, ट्रांसपोर्ट का मसला है, हर तमाम चीज़ें जो सहूलियात जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी उन्होंने हमें नहीं दिए। दावे बहुत किए, लेकिन ये कि अब हम देखते हैं कि अब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करती है। आवाम ने तो उनको वोट दे के जितवा दिया है, लेकिन ये जो हालात है इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये जो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, आवाम अब क्या करे, बेबस है, हर जगह बेबस है, आवाम कुछ नहीं कर सकती। नहीं, हम तो बस घर में खेल कूदते हैं। यहाँ के गड्ढा देखें कैसे भरे में, गवर्नमेंट को चाहिए हमारे गड्ढा खोले और इतना सारा पानी भर चुका है हमारे नदी नाले में, हमारे जाने में इतना परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट को बोले हमारे गड्ढा खुलवाएं। भाई बहुत खुश हो रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अरसे के बाद बारिश हुई है यहाँ पे, तो हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत है, हम खुश हैं। ये गंदगी बहुत है यहाँ पे, वैसे सफाई नहीं है, पानी का भी बहुत पानी मिलता नहीं है। बारिश की वजह से अल्लाह का पानी देख कर खुश हो रहे हैं। अब बकाया इंतजामी वालों ने कुछ नहीं करा, पानी हमें मिला नहीं है, तो बोरिंग भी हमारे कराइए 1-1 लाख रुपया लगा रहे हैं। गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से लाए। मैट्रो वन न्यूज से बात करते हुए एक जानिब शहरी खुशी से खिलखिलाते दिखाई दिए, वहीं अदम कारकर्दगी पर दुहाइयां देते नजर आए। भाई लोग बड़े खुश हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग सब खुश हैं यहाँ पर, मगर ये जो यहाँ के चेयरमैन साहब है ना, उन्होंने यहाँ खड्डे रोड पे खोद दिए हैं। खड्डे खोदने के बाद इधर नहीं आ सके। ये सामने मदरसा आपको दिख रहा है, ये 4 महीने से बंद है इस खड्डे की वजह से। खाली पूरी कॉलोनी की लाइन काट के इन्होंने रख दी है, पानी किसी को नहीं दिया है। पानी हर आदमी को तकलीफें आते जाते को अल्लाह की रहमत बरस रही है। हर आदमी बिल्कुल ऐसा खुश है, कभी जिंदगी में खुश नहीं हुआ था 5 साल के बाद यहाँ कराची के अंदर, समझे। आप ये देखें ना, यहाँ के चेयरमैन है, नाजिम है, कोई भी आके इस रोड को नहीं देखता। ये कॉलोनी बंद कर दी इन्होंने रमजानों से।
कॉलोनी बंद कर दी, गाड़ी गिर रही है, वो खड्डे में 11 गाड़ियां गिर चुकी। आप बताएं इसका हल क्या होगा हमारे लिए? देखें, कराची वाले तो बहुत खुश हैं, अब्र रहमत बरस रही है, लेकिन इस रहमत को हमारी इंतज़ामिया ने हमारे लिए ज़हमत का बाइस बना दिया है। ये आपके सामने रोड की कंडीशंस है, ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये पाइपलाइन के लिए जो है यहाँ पर खुदाई की गई थी, जो कि पिछले मेरे ख्याल से 4 महीने से ये खुदाई की हुई है। अब आप खुद बताएं, जब यहाँ पे बारिश हो रही है, ये हमारे लिए रहमत का एक बाइस है, जिसको हमारी इंतज़ामिया ने और हमारी जो ऊपर जो जितने भी चेयरमैन बैठे हुए हैं, इनकी गफलत ने हमारे लिए बाइस ज़हमत बना दिया है। अब अगर इन केस इसके अंदर कोई पानी वगैरह जाता है, कोई बच्चा गिरता है, कुछ होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो ये कि मेरी अपील है हुकाम बाला से कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो जल्द से जल्द गौर किया जाए। चलिए ठीक है, अगर इसको नहीं करते आप, पानी वगैरह का कोई सिस्टम नहीं करते, तो कम से कम इसको जो है वो क्लियर कर दें, ताकि यहाँ पे कोई किसी जानी हादसे से महफूज रहा जा सके। ये बहुत खुशी हैं हम लोग सब, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जितने भी हुक्मरान हैं ना हम लोगों के, इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ है, सब गटर बंद हैं, कहीं गाड़ियाँ बंद हैं, बहुत मुश्किल हो रही है इस चीज़ की, और अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश के पानी का निकासी का अमल अब तक शुरू ही न हो सका। वाज़ेह रहे, महकमा मौसमियात की जानिब से चंद रोज कबल ही बारिशों की पेशगोई कर दी गई थी। इसके बावजूद भी सड़कों पर कई फुट जमा पानी इंतजामिया पर कई सवालात उठा रहा है। शहरी इस वक्त अजियत में मुब्तला हैं। वहीं आपको बताएं कि कराची में बारिश ने सिंध हुकूमत समेत बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। आपको बताएं लियाकताबाद, नाज़माबाद, शारा फैसल और KPT अंडरपास में पानी इस वक्त भी जमा है, जबकि लियाकताबाद अंडर बाईपास ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, जहां मानसून सिस्टम ने रंग जमा दिया है, वहीं शहरी भी इस वक्त अजियत से दो चार हैं। आपको बताएं अवाम इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। जगह जगह कचरे का ढेर, जिस पर अब बारिश के पानी की वजह से ताफुन पैदा हो रहा है और बीमारियां फैलने का भी खदशा है। साथ ही आपको बताएं कि इस वक्त मुख्तलिफ फ्लाईओवर्स में बारिश का पानी भी जमा है और दौरे भी किए गए हैं, लेकिन ड्रेनिंग के हवाले से बात करें तो कोई खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए हैं, जिससे अब भी सड़कों और शाहराहों पर पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। अपडेट आपको कर रहे हैं, कराची में बारिश ने सिंध हुकूमत के साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची और DMCs की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। लियाकताबाद समेत नॉर्थ नाज़माबाद, शारा फैसल और KPT अंडरपास में पानी इस वक्त भी जमा है और तालाब का मंजर पेश कर रहा है। बात हो रही है शहर कायद की शाहराहों के हवाले से, तो आपको बताएं कि कराची की इस वक्त अहम शाहराहें भी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शारा फैसल, कारसास, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, सफूरा चौरंगी, गरीबाबाद, लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी, कोरंगी, मलिर लांडी, सदर, अहमद जिन्ना रोड, निश्ता रोड, रेंचोर लाइन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में कई फुट इस वक्त पानी जमा है। सड़कों पर गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई और शहरी इस वक्त अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे मेट्रो 1 न्यूज के नुमाइंदे शुजात कुरैशी से, जो इस वक्त शाहराह पर मौजूद है। बराह रास्त शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम नजर आ रहा है और साथ ही साथ कई फुट पानी भी जमा है। इस वक्त भी जो है शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पे पानी जमा है। इस वक्त आपको लियाकताबाद डाकखाने से रिपोर्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यह जो शाहरा है, मेन शाहरा है, और यहाँ पे पानी किस कदर जमा है। लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इसको आप पानी की जो इसकी तादाद है, इससे मकदार, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे बंद हो गई हैं और जो नाज़माबाद से लियाकताबाद डाकखाने रास्ता ये आ रहा है, मुकम्मल तौर पर पानी यहाँ पे जमा है और यहाँ पे कोई निकासी आपका सिलसिला नहीं है और इस कदर आवाम परेशान है। तो आवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी को निकास किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। इंतजामिया की गफलत, नाअहली और लापरवाही की वजह से अपने जहमत बन चुकी है और सुबह से ये टाइम हो चुका है और ना बिजली है ना पानी है, और पानी जो है लेकिन वो सड़कों पे है। लेकिन आवाम इस कदर परेशान हो गए क्योंकि जो इंतजामिया है वो पानी को निकास करने में, उसकी निकासी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। जितने भी छोटे बड़े नाले हैं वो कचरे से इस कदर भर चुके हैं कि सारा पानी जो है नालों से बहकर बाहर आ रहा है और जो गलियों में जो कचरा था वो बारिश के पानी बह
बह कर जो है घरों में दाखिल हो रहा है। इस कदर आवाम परेशान हो गए कि अपनी मदद आप के तहत वो घरों से पानी निकालने पर मजबूर हैं। सिटी गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के दरमियान जो रस्साकशी जारी है, इख्तियारात की जो जंग है, फंड की नाकामी का जो फंड की ना होने का जो शिकायत है, उसकी वजह से आवाम को सफ़र करना पड़ रहा है। और जो बात की जाए शाम की, तो शाम में शहर की मुख्तलिफ शहरों में इस कदर ट्रैफिक जाम था कि लोगों का मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया। और इसके साथ साथ जब सुबह 6 बजे बारिश हुई तो जो शहरी थे वो खुशी से खिलखिला उठे और काफ़ी अरसे बाद कराची में इस तरह की बारिश देखने को मिली। और जब उसके बाद जो है बारिश का पहला कतरा गिरा, उसके बाद लाइट चली गई। शहर का जो आधे से ज़्यादा हिस्सा था वो लाइट से महरूम हो गया। और अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लाइट बहाल नहीं हुई है, बिजली नहीं आ सकी है। उसके बाद जब दोपहर हुई तो शहरों पे इस कदर पानी जमा हो गया था कि लोगों को जो अपने घरों पर पहुंचना मुश्किल हो गया था। जो दुकान और मार्केटें थी वो बंद होना शुरू हो गई थी। लोगों का जो मिनटों का सफ़र तो घंटों में तय हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब हो गई। टैक्सी और जो रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं उन्होंने मनमाना किराया वसूल करना शुरू कर दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर, गवर्नर सिंध और जो वज़ीर बल्दियात हैं वो दौरों पे तो निकले, लेकिन उनके दौरों से कोई फ़ायदा नहीं हो सका। मेयर कराची और गवर्नर सिंध जो है कैफे प्याला में बैठ कर चाय पीकर मौसम को लुत्फ़ उठाते रहे और शहरी ख्वार होते रहे, परेशान होते रहे। मुख्तलिफ इलाकों में लोगों की बाइकें ख़राब हो गई। मैकेनिक वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी दावा करते हैं कि शहर की ऐसी कोई शाहरा नहीं है जहाँ पे पानी चले। ये लियाकताबाद डाकखाना है, मेन शाहरा है, सामना अभी भी करना पड़ रहा है। तो फर्नीचर है लोगों के खराब हो गए हैं और जो कचरा है वो भी घरों में दाखिल हो गया है। तो बहुत ज्यादा शहरी परेशान है और ये कहा जा रहा है कि आज भी सिलसिला का सिलसिला जारी रहेगा। तो शहरी अब ये दुआ करें कि बारिश ना बरसे। पहले ही शहरी दुआ करते हैं कि बारिश बरसे और ताकि वो एंजॉय कर सके। लेकिन जो इंतजामिया है उसकी गफलत नाहिली की वजह से ये अब्रे रहमत बन चुकी है। पॉइंट्स पे जाएं लेकिन वो जा नहीं सके क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल पर नाकाम हो गई। और हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों का विजिट तो होता रहा, फॉर्मेलिटी पूरी की जाती रही, लेकिन उसका हल नहीं निकल सका। 110 पंपिंग स्टेशन पंप रिक्वायर्ड है कराची शहर, लेकिन बोर्ड है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होने नजर आया। तो ये तो हो चुकी है, निज़ाम जिंदगी मफलूज दरकार है। क्योंकि जिस तरह से सुस्त रवि से पानी को निकास किया जा रहा है तो लगता ही है कि 2 से 3 दिन मजीद लगेंगे। और जब ये पानी शुरू होगा तो उसके बाद तो जो है फूटेंगी और जो है गंदगी की वजह से शहरियों के जो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ताफुन अभी से उठना शुरू हो चुका है। और जो कचरे के हाल तो पहले से आप जानते हैं कि शहर में जो है कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, कचरे को उठाने का कोई इंतजाम मुयसर नहीं है। इसकी वजह से आवाम जो है परेशान हो गए हैं। जो बारिश है वो कचरे पे पड़ा और कचरे से बदबू उठने लगी है। वो कचरा जो है बारिश के पानी में बहकर घरों में दाखिल होने लगा है। और जो आवाम में इस कदर परेशान हो गए हैं कि एक ही मुतालबा करते हैं कि खुदारा कराची के आवाम के मसाइल को हल किया जाए। और बदकिस्मती है कि शहर कराची 70% रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आता। कोई वाली वारिस नहीं है, कोई ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। दावा जरूर करते हैं लोग तमाम सियासी जमातें कि शहर उनका है, यहाँ के लोग उनके हैं, वोटर्स उनके हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि यहाँ पर शहरियों के लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई फैसिलिटेशंस नहीं है, किसी भी किस्म की सहूलियात मुयसर नहीं है। ज़रा सी बारिश बरसती है, बूंदें बरसती हैं तो बिजली चली जाती है, पानी जमा हो जाता है, निकासी नहीं हो पाती है, नाले उबल पड़ते हैं, घरों में पानी दाखिल हो जाता है। तो बहुत से इशूज़ हैं जो कि सॉल्व होने चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुए हैं। तो आवाम का मुतालबा एक ही है कि इशूज़ को सॉल्व किया जाए ताकि आवाम सुकून का सांस ले सकें। जी अच्छा, शुजात कुरैशी, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने बताया कि ट्रैफिक की सूरत हाल इस वक्त बदतर है, तो कौन कौन सी ऐसी शाराएं हैं या फिर इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक की रवानी अभी भी मुतासिर है?
गालिबन राबता हमारा मुनक़ता हो चुका है। अवाम इस वक्त शदीद अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। जगह जगह कचरे का ढेर, जिस पर अब बारिश के पानी की वजह से ताफुन पैदा हो रहा है और बीमारियां फैलने का भी खदशा है। कराची की मरकजी शाहराहें तालाब बन चुकी हैं। शाहराह फैसल, कारसास, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल, सफूरा चौरंगी, गरीबाबाद, लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, औरंगी, कोरंगी, मली, लांडी, सदर, अहमद जिन्ना रोड, निश्तर रोड, रेंचोड़ लाइन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में कई फुट पानी इस वक्त भी जमा है और सड़कों पर गाड़ियां बंद हो चुकी हैं। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो चुका है। और आपको बताएं, शहर कायद में बरसता सावन, वहीं बल्दिया उज़्मा कराची और जिला इंतजामिया की नाअहली सामने ले आया है। आपको बताएं कि बारिश की वार्निंग जारी होने के बावजूद मुतादिद छोटे बड़े नालों की सफाई नहीं हुई है। लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी टाउन, कोरंगी, मली, लांडी, शाह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में नाले उबल पड़े हैं। गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा भी है। आवाम की दुर्गत बन चुकी है। आपको बताएं कि मुख्तलिफ इलाकों में और साथ ही मरकजी शाहरा भी तालाब का मंजर जहां पेश कर रही हैं, वहीं शहर कायद में बरसता सावन बल्दिया उज़्मा कराची समेत जिला इंतजामिया की नाअहली भी सामने लेके आ चुका है। जितने वादे किए गए थे, दावे किए गए थे कि पहले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। आवाम शदीद अजियत से दो चार हैं। बारिश की वार्निंग जारी होने के बावजूद मुतादिद छोटे बड़े नालों की सफाई नहीं हो सकी है। लियाकताबाद, नाज़माबाद समेत मुतादिद ऐसे इलाके हैं जहां पर नाले इस वक्त भी उबल रहे हैं, जबकि गंदगी और ताफुन से बीमारियां फैलने का खदशा है। आवाम की दुर्गत बन चुकी है। साथ ही साथ आपको बताएं, जहां पर बारिशें हुई हैं, सुबह से ही बारिशों का सिलसिला जारी रहा, वहीं नशीबी इलाके भी जेर आब आ चुके हैं। आपको बताएं कि नालों के अतराफ कायम आबादियों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहरियों की नकल मकानी भी शुरू हो चुकी है। नालों की सफाई न होने पर मकीनों की बल्दियाती इदारों को दुहाइयां देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आवाम काफी अजियत में मुब्तला है। आपको बताएं कि नालों के अतराफ जो भी आबादी थी, वहां से अब लोगों की नकल मकानी का अमल शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध, मेयर कराची भी गए थे, दौरा भी किया गया था उनकी जानिब से मुख्तलिफ नालों के अतराफ, लेकिन दौरे के बाद आपको बताएं कि काम भी अब बंद कर दिया गया है। जिस तेजी से काम का सिलसिला उनके सामने जारी था, अब वो सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। आपको बताएं कि जहां शहर कायद में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, तेज और हल्की बारिशें सुबह से ही जारी थी, वहीं नशीबी इलाके जेर आब आ चुके हैं। नालों के अतराफ कायम आबादियों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। शहरियों की नकल मकानी भी शुरू हो गई है। नालों की सफाई न होने पर मकीनों की बल्दियाती इदारों को दुहाइयां देने का सिलसिला भी जारी है। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कुछ बात कर लेंगे दौरों के हवाले से। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए हैं और नकासियाब का जायजा भी लिया और शहर में नकासियाब के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। शाहराह फैसल, कारसास, हसन स्क्वायर, गरीबाबाद, नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया और गुज्जर नाले के अतराफ के इलाकों में नकासियाब के इकदामात का जायजा लिया। शाहराह फैसल के दौरे के दौरान PIDC के इलाके नाले की सफाई के कामों का जायजा लिया। महमूदाबाद में भी नाले की सफाई के काम का मुआयना किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि शहर में अब्रे रहमत बरसी है, शहरियों को जहमत से बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। शाहराह फैसल, कारसाज, हसन स्क्वायर, गरीबाबाद, नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया और गुज्जर नाले के अतराफ के इलाकों में निकासी आब के इकदामात का जायजा लिया। शाहराह फैसल के दौरे के दौरान PIDC के करीब नाले की सफाई के कामों का जायजा लिया। महमूदाबाद में भी नाले की सफाई के काम का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि शहर में अब्रे रहमत बरसी
बरसी है। शहरियों को जहमत से बचाने की पूरी कोशिश की है। इदारों को पहले ही हिदायत कर दी थी कि प्री मॉनसून बारिशों से कबल इक़दामात कर लें ताकि लोगों को मुश्किल ना हो, और बल्दियाती इदारे इस सिलसिले में कामयाब भी नजर आते हैं। देखिए, मैं आज इस दौरे पे कराची के निकला था और ये देखने निकला था कि कराची में जो वसीम से मेरी बातचीत मुसलसल होती रही, मेयर साहब से, जिन्होंने ये बताया था कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं नालों की क्लॉगिंग खुलवाने के लिए, तो मैं आज इनके साथ ही निकला हूँ ये देखने के लिए कि क्या नाले रवां हैं, पानी निकल रहा है, शहरियों को तकलीफ तो नहीं हो रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त कराची एंजॉय कर रहा है बारिश को, और अच्छे इंतजामात महदूद वसाइल में जो मेयर ने किए हैं, कराची में KMC कर सकती थी, वो उन्होंने किए हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों की इस वक्त ये होना चाहिए कि कराची की मदद करें। जो वसाइल की कमी है, जो मशीनों की कमी है मेयर को, वो पूरी की जाए। मेयर कोई भी हो ताकतवर होना चाहिए। जब शहर का मेयर ताकतवर होता है, शहर की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो ताकतवर होती है। दुनिया भर के अंदर हमने देखा है कि वहाँ से मसाइल हल होते हैं अवाम के। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर भी पूरे सिंध में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं वो ताकतवर बने, वो आवाम के मसाइल को हल कर सके। मैंने के इलेक्ट्रिक में भी आज अभी उनके चेयरमैन से भी और CEO से भी, दोनों से बात की है। उनको हिदायत की है कि फौरी तौर से सारा अमला बाहर निकालें और जितनी तारें टूटी हैं उनको संभालें। बिजली खोलने में शायद कराची के लोगों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े आज, क्योंकि जो तारें टूटी हैं वो अगर वहाँ से पीछे से फीडर्स खोल देंगे तो इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा है, तो लिहाजा वो उसके रिपेयर में टाइम लगेगा। इस मौके पर मेयर कराची वसीम अख्तर ने हिदायत की कि जिन सड़कों पर पानी ज्यादा खड़ा है वहां मशीनरी और अफरादी कुव्वत में इजाफा किया जाए। उनका कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची का अमला रात को भी ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। स्टाफ को 3 शिफ्टों में तकसीम किया गया है ताकि 24 घंटे काम जारी रहे। देखिए, गवर्नर साहब ने मुझे फोन पे कहा कि कराची का विजिट करना है, बारिश तेज होने वाली है, इंतज़ामात देखने, तो मैं इनके साथ आज 3 घंटे से हम इस पे हैं। सईद गनी साहब अपनी जगह मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब साथी हों। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि जो तकलीफ़ नज़र आ रही है वो कम से कम हो। लोगों को प्रॉब्लम्स तो हैं, ज़ाहिर है इतनी तेज़ बारिश कभी कभी होती है कराची में, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत खामियां हैं, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता तो ये पानी सड़क पे नहीं होता, नालों में चला जाता। अब नालों में पानी नहीं जा रहा है क्योंकि नालों में कचरा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसका काम है ये कि कचरे का डिस्पोजल करे राइट टाइम पे। जब तक कचरे का डिस्पोजल नहीं होगा नाले साफ नहीं हो सकते। सीवरेज नालों में जा रहा है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि सीवरेज ठीक करे। तो हम जितने वसाइल हैं उसमें रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इलेक्टेड लोग, गवर्नर साहब, हम सब साथ सड़क पे हैं, अवाम के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने अवाम को छोड़ा हुआ है। दौरे के दौरान गवर्नर सिंध और मेयर कराची वसीम अख्तर ने प्याला होटल पर शहरियों के साथ चाय भी पी और उनसे मसाइल के हवाले से आगाही हासिल की। इस मौके पर दोनों शहरियों में घुल मिल गए। होटल पर मौजूद शहरियों ने गवर्नर सिंध और मेयर कराची के साथ सेल्फियां भी बनवाई। बात हो रही है बारिश के दौरान दौरों के हवाले से, तो आपको बताएं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से, जिन्होंने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। आपको बताएं कि बारिशों से मुतासर होने वाली सूरत हाल का मुआयना भी किया। उन्होंने कहा कि मज़ाफ़ाती इलाके बे सिंध का हिस्सा हैं, इन लोगों को भी मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आपको बताएं कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों का दौरा किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह शहर को भूल गए, बारिशों से मुतासर होने वाली सूरत हाल का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि मज़ाफ़ाती इलाके भी सिंध का हिस्सा हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इन लोगों को भी मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएं। अब खबर सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी के हवाले से, जिन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और बारिश से मुतासरा इलाकों में इक़दामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारे शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां हैं।
आपको बताएं कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है और बारिश से मुतासरा इलाकों में इकदामात का जायजा भी लिया है और साथ ही साथ इकदामात भी उनकी जानिब से जारी किए गए हैं। वजीर बल्दियात ने आपको बताया कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेट्रोविल में नाले के हवाले से शिकायत पर फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर वेस्ट आपको बताएं कि वसीम सुमरो को तलब भी किया और नाले पर फौरी तौर पर मशीनरी लगवाकर नाले की सफाई का काम भी करवाया। अपडेट आपको कर रहे हैं वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हवाले से। उन्होंने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और ब्रीफिंग भी ली है और उन्होंने ये भी कहा कि अपनी निगरानी में नालों और शहराओं की सफाई का काम करवा रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने का मकसद यही है कि आवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके और उनको मजीद रिलीफ फराहम किया जा सके ताकि किसी किस्म की मुसीबत उन्हें लाहक ना हो। अपडेट आपको कर रहे हैं वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हवाले से, जिन्होंने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। साथ ही साथ नकासी आप के हवाले से बात करें तो नकासी आप के कामों का उनकी जानिब से जायजा लिया गया है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए और बारिश से मुतासिरा इलाकों में इकदामात का जायजा लिया। वजीर बल्दियात ने मेट्रोविल में नाले के हवाले से शिकायत पर फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कमिश्नर वेस्ट वसीम सोमरू को तलब कर लिया और नाले पर फौरी तौर पर मशीनरी लगवाकर नाले की सफाई का काम करवाया। देखिए, मैं साउथ में फिरा हूँ, मैं फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गया हूँ, फिर उसके बाद अभी सेंट्रल में आया हूँ, तो तमाम जगहों पर अच्छी ठीक सूरत हाल है, कोई इतनी तशवीशनाक बात नहीं है। तमाम लोग जो हैं वो फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट गया तो मुझे वहाँ के चेयरमैन डीएमसी के नज़र आए, वो भी सड़कों में थे। अभी मैं सेंट्रल में आया तो रेहान हाशमी जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर्स मुझे नज़र आए, वो भी काम कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बड़ी हौसला अफजा बात है कि बारिश में शहरियों की तकालीफ को कम करने के लिए तमाम इंतज़ामिया, तमाम मुंतखब नुमाइंदे जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है इसी तरह अगर हम काम करते रहे तो तकालीफ तो होंगी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल उन तकलीफ़ों को कम करने के लिए हर आदमी अपना काम कर रहा है। और ख़ास तौर पे जो कारकुन हैं, जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो इसमें यहाँ सड़कों पे काम कर रहे हैं, जो नाले साफ़ कर रहे हैं, मैं उनको शाबाशी देना चाहता हूँ कि वो बड़ी दिल जमई के साथ इस बारिश के मौसम में भी सुबह से काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि जब तक ये बारिश जारी रहे हम बगैर किसी छुट्टी के, बगैर किसी वक्फे के ये काम इसी तरह करते रहें। इस मौके पर वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि अपनी निगरानी में नालों और शाहराहों की सफाई का काम करवाया है। उनका कहना था कि शहर के दीगर इलाकों में भी बारिश के बाद निकासी आप के इकदाम जारी हैं और बल्दियाती इदारे शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हैं। उनका कहना था कि प्री मानसून बारिशों का पहले से ही इल्म था, जिसके बायस नालों की सफाई का काम कर लिया था, मगर बारिश का दौरानिया तवील हो गया है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में मसाइल हुए हैं जिनको हल कर लिया गया है। बात हो रही है शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के हवाले से, तो कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का जहां सिलसिला जारी रहा, वहीं सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की सर्द जंग ने शहर को डुबो दिया है। कराची लावारिस हो चुका है। आपको बात बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वजीर बल्दियात सिंध या फिर मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों का जहां दौरा किया गया है, वहीं नालों की सफाई भी नहीं हो सकी है। पानी की निकासी का काम भी सुस्त रवि का शिकार है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची लावारिस हो चुका है। सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत की सर्द जंग ने शहर को डुबो दिया है और शहर को अकेला छोड़ दिया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से बात की जाए या फिर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हवाले से बात की जाए, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी, मेयर कराची वसीम अख्तर कराची के मन पसंद इलाकों के उन्होंने दौरे किए हैं, लेकिन सफाई सुथराई के हवाले से बात करें तो वो जूं के तू नजर आ रहे हैं। पानी की निकासी का काम भी सुस्त रवि का शिकार है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे बिलाल एहसन से। बिलाल एहसन, अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमने देखा कि सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी था, दौरे भी किए गए, इससे पहले भी कई ऐलानात किए गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई थी, मीडिया टॉक भी की गई थी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। जी देखिए, जो शहर की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल जो है वो तो काफी ज्यादा खराब लग रही है। वो इससे कि गुज़िश्ता एक माह से जो है महकमा मौसमियात जो इस बात की पेशेनगोई कर रही थी कि कराची में मानसून की बारिश का सिलसिला काफी तेज रहेगा, लेकिन इसके हवाले से कमिश्नर कराची ने भी गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ नालों की सफाई के हवाले से दौरे किए थे। ये दौरे भी जो उन्होंने करने के बाद अच्छे की रिपोर्ट दी थी, लेकिन बहरहाल ये
मेट्रो वन न्यूज के जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, उन्होंने जब वहां पर दौरे किया था कराची शहर का, तो नाले जो थे वो डीएमसी की जानिब से सफाई नहीं किए गए थे। आज की बारिश के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये सिंध हुकूमत और केएमसी के दरमियान जो एक सर्द जंग है, उस सर्द जंग के जो निशाना है वो कराची के शहरी बन रहे हैं। इसलिए कि नालों की सफाई ना होने की वजह से जो है मुस्तकिल पानी जो है बारिश का वो रेल की सूरत में जो है वो नाले में जाता है, और नाले में जाने के बाद जब आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो करीब की आबादियों की जानिब जो है पानी घरों में दाखिल हो गया है। तो आज जो है तमाम की तमाम जगहों पे जो है गवर्नर सिंध ने, मेयर कराची ने शहरी इलाकों का दौरा किया, जबकि वज़ीर आला सिंध ने गोठों का और वज़ीर बल्दियात ने गोठों का और कच्ची आबादियों का दौरा किया। तो इससे वाज़ेह अंदाजा होता है कि इस कराची शहर जो है सियासी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी काफी ज्यादा जो है वो मखसूस सूरत हाल रही, और गुज़िश्ता 12-13 घंटे से जो बारिशें हो रही हैं उस वक्त से लेकर अब तक जो कराची शहर के तकरीबन 1/3 इसका जो बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल है, और के इलेक्ट्रिक के जो है तकरीबन 1400-1500 फीडर जो ट्रिप हुए थे, जिनमें उनका कहना है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है गवर्नर सिंध के ने भी उनसे बात की है, वज़ीर आला सिंध ने भी बात की है, इसके बावजूद जो है अच्छा बिलाल एहसन, हमने देखा है कि इस तरह की सूरत हाल जब भी होती है, सब अच्छा है कि रिपोर्ट हमेशा दी जाती है। बात की जाए गुज्जर नाले की या फिर दीगर नालों की, तो बदतरीन सूरत हाल है। गवर्नर सिंध या फिर मेयर कराची ने जहां पर दौरा किया, उनके दौरे पर आते ही काम तेज तरीन कर दिया गया था, लेकिन उनके जाते ही काम को बंद कर दिया गया था। वहीं बात करूं अगर मैं वजीर बल्दियात सिंध के हवाले से, तो उनकी जानिब से भी बारिश से कबल ही अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आ रही है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला बल्दियात जो वज़ीर बल्दियात थे मेयर कराची, इसके अलावा जितने भी इसमें मेयर कराची के साथ उनकी कोलैबोरेशन थी, वो गवर्नर सिंध की भी काफी अच्छे से इस हवाले से मीटिंग चल रही थी, और वज़ीर आला सिंध की भी चल रही थी। लेकिन बहरहाल जब ये वज़रा वहां से दौरा करते हैं तो वहां तकरीबन जो है वक्ती तौर पे जो है सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं, लेकिन उसके बाद उनकी रवानगी के बाद जो है वो वहां पर काम जो है तरफी का शिकार होता है। केएमसी की इंतजामिया का कहना यह है कि उनके पास फंड्स नहीं है, उस फंड्स और मशीनरी ना होने की बात से उनके काम में तासुल पैदा हो रहा है, और वफाक की जानिब से भी जो उन्हें फंड्स देने की बात की गई थी, वो के काफी इमरान खान के गुज़िश्ता दौरे में भी इस बात का एहदिया दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है केएमसी को कोई फंड्स ना मिले, और ना सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई इतने ज्यादा फंड्स मिल रहे हैं, बल्कि सूबाई हुकूमत की जानिब से ऑक्ट्राई टैक्स में भी जो कटौती की गई, जिसकी वजह से केएमसी जो है अपने फंड्स की किल्लत के बाद जो है वो काम करने से कासिर है। लेकिन बहरहाल ये बात होता है कि कुछ सियासत है, और कि सियासी सूरत हाल की वजह से भी जो है वो कराची शहर में एक सियासी गेम खेला जा रहा है, इसलिए कि अगले साल बल्दियात इलेक्शन है, और इस बल्दियाती इलेक्शन में शहरी अवाम को जो है इस बात की राग़िब किया जाएगा कि सूबाई हुकूमत अपनी गुन गाएगी और शहरी हुकूमत अपनी गुन गाएगी। अच्छा बिलाल एहसन, हमने हमेशा देखा है कि फंड्स का रोया जाता है, लेकिन आवाम इन तमाम तर मसाइल में पिस कर रह जाती है। बारिश के बायस हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में के इलेक्ट्रिक के 400 से ज्यादा फीडर्स मुतासिर हुए, जिससे आवाम ही अजियत में मुब्तला रही। आवाम के मसाइल को जूं का तू छोड़ दिया जाता है। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल तो वो कि हम जहाँ 10-15 साल से देख रहे हैं कि वैसे की वैसे ही है, और हर साल जो है के इलेक्ट्रिक की जानिब से इस बात का दावा किया जाता है कि अरबों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट की जा रही है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है इस मुतालिक नहीं जा जाता। आज भी कराची शहर के अंदर तकरीबन 2 से 3 बच्चे जो है उकरण लगने की वजह से हलाक हुए, और जब भी कराची शहर में हल्की सी भी बूंदाबांदी हो तो इनके फीडर्स जो ट्रिप हो जाते हैं। हमारे जराये के मुताबिक तो यह है कि 1000 से ऊपर इनके जो फीडर्स है वो ट्रिप हुए हैं, लेकिन इनकी ऑफिशियल बयानात में जो है 400-500 कहा जा रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है अवाम की जानिब से इस बात की शिकायत है कि वो जब आपके शिकायती नंबर पर इंदराज कराते हैं तो वो वहां से कोई अटेंड नहीं करता, और ना कोई इनकी शिकायत को सुनने वाला है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बहुत ज्यादा शहरियों में गुस्सा पाया जाता है। गो के गवर्नर सिंध, मेयर कराची की जानिब से इस खिलाफ से मजम्मती बयान तो जारी किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब ये वक्ती तौर पर होता है। बारिश कल को थम जाएगी, उसके बाद तमाम के तमाम लोग ये तमाम चीजें भूल जाते हैं, और के इलेक्ट्रिक अपने वही रवायती हटगर्मी पर बरकरार रहती है। वज़रा की जानिब से कराची के मनपसंद इलाकों के दौरे किए गए हैं। अवामी मसाइल जूं के तू हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन, आपने तफसीलन आगाह किया।
साथ ही साथ आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती पानी के निकास के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन रेहान हाशमी ने बल्दियाती अमले के 24 घंटे फराइज अंजाम देने की हिदायत भी जारी कर दी है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बरसाती पानी के निकास के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन रेहान हाशमी ने बल्दियाती अमले के 24 घंटे फराइज अंजाम देने की हिदायत भी जारी की। उनका कहना था कि बरसात की वजह से तमाम तर मसाइल पैदा होते हैं। जिला वस्ती में पेशगी इक़दामात कर लिए थे, जिसके बाइस दौरान बारिश ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। चंद एक जगह पर निकास के मसाइल थे जिन्हें अमले ने बर वक्त हल कर दिया है। उनका कहना था कि बल्दिया वस्ती में अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद है। तमाम अमले की छुट्टियां पहले से ही मनसूख कर दी गई थी। उन्होंने बारिश के दौरान बल्दियाती अमले की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया और अमले को शाबाशी दी। देखें, बल्दिया ज़िला वस्ती की हदूद में चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। हमारे तमाम अंडर पासेस क्लियर हैं। अलग सुबह हमारी नफरी वर्कफोर्स, बल्दियाती नुमाइंदगान, हक परस बल्दियाती चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अपने अपने इलाकों की सड़कों पे मौजूद हैं। हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर हों या हमारे ऑफिसर्स हों, तमाम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कीनली। 5 एक्सकेवेटर हायर किए हुए हैं हमने। इसके अलावा हमारे पास टोटल 22 मशीनरीज काम कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे। जो ट्रबल पॉइंट्स हैं, हमारे चोकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर हमने अभी तक तो क्लियर कर दिया है। आवाम से भी गुजारिश है, बिजली के हवाले से हो या ट्रैवलिंग के हवाले से हो, अवॉइड करें। किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बारिश होती है तो लिविंग पैटर्न वो थोड़ा चेंज होता है, ज़िंदगी स्लो हो जाती है। एहतियात करनी चाहिए, इसका मतलब नहीं है। और बारिश को एंजॉय भी करें, ये अल्लाह की रहमत है, नेमत है। पानी के कंजर्वेशन की भी बात करें। कोई ऐसी सूरत हाल हमारे नोटिस में नहीं आई। मुख्तलिफ जगहों पे चोकिंग पॉइंट्स में हमारी नफरी लगी हुई है, वर्कफोर्स काम कर रही है, रेस्क्यू डिपार्टमेंट अलर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें बेहतर हैं। देखिए, बरसाती नाले जो कि हम और आप बरसाती नाले कह रहे हैं, लेकिन ये बरसाती नाले नहीं रहे हैं, ये सेवरेज नाले बन चुके हैं। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने अपने सेवरेज के निज़ाम को इन बरसाती नालों में डाला। इंतहाई मैं समझता हूँ कि इस शहर के साथ जुल्म हुआ है। अब उसमें सेवरेज के पानी में ये जो ज़ायद बरसात का पानी है जाएगा तो ये लामोहला ओवरफ्लो होगा। किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग में तो यही है कि वो जो चोकिंग पॉइंट्स है उसको क्लियर करें। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट उसी वक्त आएगा कि जब हम इन बरसाती नालों में से सेवरेज के निज़ाम को निकालेंगे और इसमें सिर्फ बरसाती पानी के लिए इसको मख्तस करेंगे और सेवरेज के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई ऐसी चीज़ होती, पानी अपने वक्त के लिहाज से जा रहा है। नशेबी इलाकों में शायद कुछ प्रॉब्लम हो क्योंकि जो मेन नाले हैं जो समुंदर में लेकर जाते हैं आपका पानी, वो क्योंकि वैसे ही सेवरेज से भरे हुए हैं, तो नशेबी इलाकों में शायद कहीं 1-2 जगहों पे प्रॉब्लम्स आए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे किए और अपनी निगरानी में नकासियाब के उमूर निपटाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात के साथ नकासियाब के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने जिला शर्की के मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे किए और अपनी निगरानी में नकासियाब के उमूर निपटाए। उन्होंने यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बरसात के साथ नकासियाब के कामों का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने कहा कि बरसात के थमने पर मुकम्मल तौर पर नकासियाब के उमूर सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे ही बरसात रुकेगी, पहले मरहले में शाहराहों को क्लियर कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि बल्दियाती अमला बारिश के दौरान मुसलसल नकासियाब के काम में मसरूफ है और कोशिश है कि बल्दिया शर्की के आवाम को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जाए। जी देखें, सुबह 5 बजे से बारिश हो रही है मुस्तकिल। अच्छा, उसकी वजह से अब जो हमारे अभी आपके साथ ही थे, हम बहुत सी जगहों पे विजिट कर रहे थे। अब जो नाले जो हो गए वो बैक मार रहे हैं क्योंकि वो ओवरफ्लो हो गए। अब थोड़ा सा अगर बारिश रुकती है और नाले नीचे जाता है उनका पानी, तो उसके बाद जो रोडों के ऊपर पानी है वो फिर क्लियर होना शुरू होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का अमला, KMC का अमला और जो मेयर साहब ख़ुद भी रोड पे हैं और विज़िट मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं। हम भी आपके सामने दूसरी जगहों पे किया है।
मैं ये समझता हूँ कि फिर भी अल्लाह का बस ये शुक्र है, एक बलोच कॉलोनी वाले ब्रिज पे एक इशू हुआ था, वहाँ पे थोड़ा सा पानी काफ़ी जमा हुआ था, उसको भी हमने क्लियर करवा दिया, अभी क्लियर हुआ है। तो अब मतलब मैं ये समझता हूँ इस इतनी मुस्तकिल बारिश के बावजूद अगर हमारी ट्रैफिक चल रही है तो मैं समझता हूँ यही बहुत है। और जो इंटरनल गलियाँ हैं उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं, बाज़ जगहों पे, बहुत सी जगहों पे ऐसा पानी जमा हो गया, वहाँ पे हमने अपना हमारा मुख्तलिफ स्टाफ है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, हमारे तंजीमी स्ट्रक्चर लगकर ब्लेड वेड लगाकर वो क्लियर कर रहा है। तो अभी देखिए, लेट्स सी क्या होता है। अभी हमने ये सुना है कि रात 2 बजे और तेज़ बारिश होगी। अगर वो जब तक अगर बारिश थमती है तो फिर भी बहुत बेहतरी की तरफ आ जाएगा। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने जिला में सफाई सुथराई के कामों के हवाले से इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बारिशों से कबल पेशगी इक़दामात के बायस शहरियों को रिलीफ मिला है। बारिशों के अलावा भी कोशिश है कि बल्दिया शर्की के मकीनों को मुकम्मल रिलीफ फराहम किया जा सके। अब खबर चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा बारिश के दौरान बल्दिया मलीर की मुख्तलिफ शाहराहों का हंगामी दौरा किया और डी वाटरिंग पंप और अफरादी क़ुव्वत की मदद से निकासी आप के काम का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा बारिश के दौरान बल्दिया मलीर की मुख्तलिफ शाहराहों का हंगामी दौरा किया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने वाइस चेयरमैन अब्दुल खालिक मरवत और म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा बारिश के दौरान बल्दिया मलीर की मुख्तलिफ शाहराहों का हंगामी दौरा किया और डी वाटरिंग पंप और अफरादी कुव्वत की मदद से निकासी आपके काम का जायजा लिया। चेयरमैन बल्दिया मलीर ने इस मौके पर मुतालिका अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि तमाम मुतालिका मशीनरी और अफरादी कुव्वत ऑन रोड रखी जाए। पानी की निकासी के लिए बारिश रुकने का इंतजार न किया जाए, बल्कि दौरान बरसात ही बरसाती पानी की निकासी के अमल को यकीनी बनाया जाए। जिला मलीर में जहां कहीं भी बरसाती पानी जमा है उसकी फौरी और हंगामी बुनियादों पर निकासी को यकीनी बनाया जाए। बरसात के दौरान हंगामी बुनियादों पर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने गैर हाजिर अफसरान और मुलाजमीन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासिक जफर को हिदायत देते हुए कहा कि मुतालिका अफसरान और मुलाजमीन को फौरी मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच को म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि तमाम यूसीज में मुतालिका अमला निकासियात के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है। नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग और अफरादी कुव्वत की मदद से निकासी का काम जारी है। बारिश के दौरान किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए बल्दियाती अमला ऑन रोड है। आगे बढ़ते और आपको बताएं, शहर में जारी तवील बारिश और इसके बाद पेश आने वाली सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अपनी टीम के हमरा जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शाहराहों और गलियों से पानी के निकासी के काम का मुआयना किया और साथ ही नालों के बहाव और इनकी सफाई का भी जायजा लिया। जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला कौंसिल ने बरसात की आमद से कबल अपने तमाम मुतालिका महकमों की छुट्टियों को मनसूख करने के साथ मशीनरी को स्टैंड बाय रखा हुआ था। मानसून के सिलसिले में होने वाली बरसात का सिलसिला कई रोज से वक्फे से जारी था, जिसको रूटीन की सफाई के साथ क्लियर किया जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता रात से बरसात की शिद्दत में इजाफा हुआ, जिसने निज़ाम जिंदगी को मुतासिर किया। बरसात की आमद के साथ ही रेन एमरजेंसी अमले ने अपना काम बदस्तूर जारी रखा। उनका मजीद कहना था कि अमले को हिदायत दी है कि हमने इकदामात पहले से किए हुए हैं, इससे जिला कौंसिल के हर बाशिंदे को रिलीफ मिलना चाहिए। मुसलसल बरसात हो रही है, इसमें तमाम उमूर को जारी रखना चाहिए। जरा सी गफलत से बड़े मसाइल जन्म ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं, कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन और म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो के हमरा दौरान बरसात मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे किए। इस दौरान उन्होंने हिदायत भी जारी की कि नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स पर तवज्जो मरकूज रखने के साथ साथ सड़कों और शाहराहों पर जमा होने वाले बरसाती पानी के निकासी के लिए फौरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए।
कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया गरबी अजीजुल्लाह आफरीदी ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जाहिद हुसैन मेमन और म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफा सोमरो के हमरा दौरान बरसात मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे किए। इस दौरान उन्होंने हिदायत जारी की कि नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स पर तवज्जो मरकूज रखने के साथ साथ सड़कों और शाहराहों पर जमा होने वाले बरसाती पानी की निकासी के लिए फौरी इकदाम को यकीनी बनाया जाए। कायम मकाम चेयरमैन अजीजुल्लाह आफरीदी ने मौके पर बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि बारिश के दौरान अवाम को रिलीफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स पर पानी की रवानी को बरकरार रखने के लिए तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को बुरोकार लाया जाए। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए रेन इमरजेंसी सेंटर्स को 24 घंटे फाल रखा जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने रेन इमरजेंसी के हवाले से किए जाने वाले इकदाम के बारे में तफसीलात से आगाह करते हुए बताया कि बल्दिया गरबी में इमरजेंसी नाफिज करके अफसरान और अमले की छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई हैं। चारों जोन्स में रेन इमरजेंसी सेंटर्स बमा तमाम जरूरी साजो सामान 24 घंटे फाल रखे जा रहे हैं। नदी नालों और चौकिंग पॉइंट्स की सफाई के लिए तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है। डी वाटरिंग पंप्स के जरिए सड़कों और शाहराहों से बरसाती पानी की निकासी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।